Today we learn about a new chapter, chapter number 5, according to NCERT book. The chapter number 5, Principles of Inheritance and Variation. I have already studied that is 4 chapters. Then we study nowadays. Now we study the principles of inheritance and variation. According to that is NCERT book, it is the 5th chapter. So 5th chapter is the first thing, principles of inheritance and variation. We study here 2 things. First thing, that is the inheritance, and second thing, variation. First we introduce you the first according to our system, that is introduction. We study what is the principles of inheritance and that is the variation. Inheritance means there are that is the many characters present in the body of organism, but few of them are that is the transfer generation by generation from parent to their offspring. No all character, few of them transfer generation by generation from parent to their offspring. The character which is transfer generation by generation is called that is the genetic character. And we study this genetic character. That character are called that is the genetic character, and that character we study a special branch of the biology that is called genetics. Genetics is the branch of biology. Genetics is the branch of biology in which we study about genetic character. A genetic character are those characters that transfer parent to their offspring generation by generation. So these are the genetics. The first term genetics was proposed by Bateson. Bateson proposed the term genetics. Bateson proposed the term genetics. That are that is the term genetics, and the father of genetics. Father of genetics. Gregor John Mendel. The father of genetics, Gregor John Mendel. So first we study about the genetic character. The character which is transferred generation by generation is called that is the hereditary character, and scientific study of this character is called the genetics, and the father of genetics, Gregor John Mendel. Second thing, variation. Small differences. No one organism just alike to other organism. One organism no just alike to other organism. No two, that is the progeny of one father is just alike. If they sexually reproduce, if there is no identical twins, small differences between the two organisms of the population in their population is called variation. A variation is the raw material of evolution. If the organisms are sexually produced, then the progeny will be no just alike to their parent. There are some small variation, some small differentiation. That small differentiation is called variation, and variation is the raw material of evolution. So we study here the 2 topics, that is the theory of inheritance and variation. So first of all, we study theory of inheritance. Then after this, variation. So first we study theory of inheritance. We see here that is the character that transfer generation by generation from parent to their offspring, that is called hereditary character, and scientific study of this character is called genetics, and the father of genetics is the Gregor John Mendel. Gregor John Mendel, that is you see here about the Gregor John Mendel, born in Austria. Austria is a country, and their city is the Brunn. Their father is that is living in the church, and they are that place they are father. There are many gardens in the church, and Mendel also live with them. First time Mendel observed then what is the reason that all organisms produce same type of hormone. Place same, that is the gardener same, everything is similar.
soil same, but the two seeds develop two type, different type of flower, different type of color, different type of shape. What is the reason? Then first of all, their mind selected that what is the region, and to know that region, Mendel that is selected for their experiment a special type of plant that is called Pisum sativum. Pisum sativum. Pisum sativum, that is called golden pea. Golden pea. The experimental plant of the Mendel is the golden pea. Mendel select a plant that is golden pea, and that are they experimented on these plant, that is plant, and the result statistical data, and they make a result. The result they wrote with that is the law, that is Mendel's law. So we see here, or everything we study here, what is the Mendel's law and how that is the Mendel's that is selected a pea plant, what is the region, a question NCERT. What is the region that Mendel selected pea plant for the experiment? This is the region. That first region, cheap and best, because first Mendel belonging to the poor family. So these are the cheapest. Second thing, best. Why it is best? Because easily available. Short life span, 3-4 months. We can study 3 generations in 1 year, 4 generations in 1 year. Other, that is the region that there is there are a contrasting character. Contrasting character. Contrasting character. Contrasting. Contrasting character. Contrasting character means that are different type of visually identify, differ to matching. Contrasting is opposite to matching. That easily can be identified, that is called contrasting character. Then easily available contrasting character. So these are the reason by which the Mendel selected pea plant, golden pea, the scientific name. That is called the scientific name is Pisum sativum, golden pea. And the golden pea contains that is 7 pairs of chromosomes. 7 pairs of chromosomes. 7 pairs of chromosomes. The experimental plant of the Mendel is the golden pea, and golden pea region for selection of the golden pea for their experiment. So these are the Mendel's that is selected pea plant, and they experimented on the plant. Some terminology, genetics term that used first time Mendel. That term first we know, then we identify their Mendel's law. There are 3 laws related to Mendel's. Law of that is dominance, law of segregation, law of independent assortment. We study step by step everything, but first of all we study the term and terminologies used by Mendel. Mendel ने कौन कौन से टर्म और टर्मिनोलॉजी का यूज किया है, देखते हैं मेंडल ने कौन सा किया। और मेंडल ने पी को ही सेलेक्ट किया, ये भी एक क्वेश्चन है आपका, क्योंकि वह चीप होता, सस्ता है, आसानी से अवेलेबल है। दूसरी चीज़ कि इसकी लाइफ स्पान कम दिन में ही, 1 साल में 3-4 जनरेशन को हम स्टडी कर सकते हैं। चौथी चीज़ कि इसमें विभेदी लक्षण जिनको अंतर कर सकें हम, ऐसे लक्षण पाए जाते हैं। जैसे देखो आप, मटर की एक वैरायटी है, एक ही स्पीसीज की वैरायटी बता रहा हूँ। एक लंबी लंबी मटर होती है, टॉल प्लांट होता है, दूसरा डॉल्फ होता है। फ्लावर देखो, एक का वायलेट पर्पल फ्लावर आता है और दूसरे का वाइट फ्लावर आता है। सीड को, सेब को देख लो, एक राउंड राउंड सीड आता है, स्मूथ राउंड, एक क्या रिंकिल जाता है। ये रीजन है उसका कि उनमें कंट्रास्ट ये नहीं कि अब हमने क्रॉस कराया, मैच कर गए, समझ ही नहीं पा रहे हैं कि राउंड है कि रिंकिल्ड है। इजली वी कैन आइडेंटिफाई। इसलिए मेंडल ने क्या किया, 7 पेयर कैरेक्टर, पहले 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को चुना। 7 पेयर कंट्रास्टिंग मान जिसमें अंतर हो सके। जैसे देखिए आप एक एग्जाम्पल, जैसे एक पहला कैरेक्टर देखें, फर्स्ट कैरेक्टर उन्होंने लिया, जैसे लेंथ ऑफ द प्लांट, लेंथ ऑफ द प्लांट, प्लांट की लेंथ लिया। अब कंट्रास्टिंग कैरेक्टर क्यों कहा इसमें,
इसमें देखिए एक टॉल, इसका कंट्रास्टिंग कैरेक्टर क्रॉस बाई ड्वार्फ, ड्वार्फ प्लांट, ड्वार्फ प्लांट, ये कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है। और कैरेक्टर एक है लेंथ ऑफ द प्लांट, और उसमें देखिए टॉल प्लांट, ड्वार्फ प्लांट। दूसरा उन्होंने कहा जैसे फ्लावर कलर, फ्लावर कलर दूसरा कैरेक्टर लिया उन्होंने इस तरह से, क्या लिखा, पर्पल फ्लावर या वायलेट फ्लावर, जो भी लिखो आप, वायलेट फ्लावर, और क्या होता है वाइट फ्लावर, ये कंट्रास्टिंग। इस तरह से 7 पेयर लिया। सीड शेप, राउंड, रिंकल, सीड शेप कैसा लिया, एक में किसी की में राउंड होता है, स्मूथ राउंड देखे होंगे, राउंड, और दूसरा कैसा था, रिंकल। इसी तरह से उन्होंने 7 पेयर लिया। कॉटलीजन कलर देखते हैं आप, येलो कॉटलीजन, किसी किसी में ग्रीन कॉटलीजन। फ्लावर पोजीशन, एक्जियल, टर्मिनल, एक्जियल फ्लावर, टर्मिनल फ्लावर। इस तरह से उन्होंने 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए। इसमें एक कैरेक्टर जो था वो डोमिनेंट कैरेक्टर था, एक रिसेसिव, अभी हम उसमें चर्चा करेंगे तो वहाँ आपको बताएंगे कि कौन डोमिनेंट है। इस तरह से 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर ले करके मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए। तो कुछ टर्म उन्होंने यूज किया, न्यू टर्मिनोलॉजी है, पहले उसको जान लेते हैं, इसके बाद शुरू करते हैं मेंडल्स लॉ। तो पहले देखें टर्म एंड टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू मेंडल। तो सम टर्म रिलेटेड टू मेंडल, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज जेनेटिक टर्मिनोलॉजी। पहले हम पढ़ेंगे इसमें क्या, जेनेटिक टर्मिनोलॉजी, जेनेटिक टर्मिनोलॉजी, टर्मिनोलॉजी, जेनेटिक टर्मिनोलॉजी देखें पहले। कुछ टर्म आपको बता दें जो बार बार यूज होंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिए क्या है, पहला टर्मिनोलॉजी देखें, ट्रेट। मेंडल ने एक शब्द यूज किया था ट्रेट। ट्रेट माने होता है कैरेक्टर। मेंडल यूज फॉर कैरेक्टर द ट्रेट, दैट इज द टॉल एंड ड्वार्फ, दैट इज द वायलेट फ्लावर, पर्पल फ्लावर। वो जो कैरेक्टर को उन्होंने ट्रेट शब्द यूज किया था, द ट्रेट यूज फॉर कैरेक्टर। 7 पेयर्स ऑफ ट्रेट लिया, कैरेक्टर। कौन से कैरेक्टर लिए उसको उन्होंने यूज किया था, ट्रेट शब्द। दूसरा शब्द उन्होंने यूज किया था क्रॉसिंग, क्रॉस कराना, क्रॉसिंग। क्रॉसिंग क्या है या क्रॉस कराना क्या है, व्हाट इज द क्रॉसिंग। क्रॉसिंग देखिए, सपोज करिए एक प्लांट है, ये देखिए फ्लावर लगा हुआ है इसमें, एक प्लांट है, एग्जाम्पल देखते हैं। वहीं दूसरा प्लांट आप उन्होंने लिया, सपोज पी प्लांट है, ये भी है, दोनों साथ लिया। क्रॉसिंग क्या है, इसका पालन ग्रेन, देखिए इसका पालन ग्रेन जो है, देखिए इसका पालन ग्रेन इसमें, और इसके एंथर पर यहाँ से पालन ग्रेन निकल के इस पर डाल देना। ये टाल प्लांट ड्वार्फ, ये क्रॉसिंग है, पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन सुने होंगे। इसी को बार बार आए क्रॉसिंग, और दिखाएं कैसे, इस तरह से टाल क्रॉस बाई ड्वार्फ। ये टाल क्रॉस, क्रॉसिंग मतलब क्रॉस्ड बाई ड्वार्फ, ड्वार्फ। तो एक का पॉलन ग्रेन दूसरे पर डाल देना, और उसको क्या करते हैं, बाई हैंड करते हैं मैनिपुलेशन, और इसको फिर पॉलीथीन से ढक देते हैं, इसलिए कि फिर से कहीं से पॉलिनेशन न हो जाए। इसी को क्रॉसिंग कराना बार बार यूज करेंगे, यही है क्रॉसिंग आपकी। क्रॉस पॉलिनेशन करा दिया, इसी को हम बार बार यूज करेंगे, क्रॉस कराया। अच्छा, दूसरा देखें ट्रेट मीन्स कैरेक्टर, दूसरा क्या क्रॉसिंग। तीसरा टर्म देखते हैं हमने यूज किया था, उन्होंने मेंडल ने यूज किया था, फैक्टर। फैक्टर, फैक्टर क्या होते हैं, फैक्टर मीन्स दैट इज द कैरेक्टर। Mendel time there is no discovery of the genes. According to Mendel, one character carried by one pairs of factor. तो उन्होंने कहा कि एक कैरेक्टर को एक पेयर फैक्टर ले जाता है। उस यही फैक्टर जो उन्होंने मेंडल ने टर्म यूज किया था, वही बाद में जॉनसन ने खोजा, उसको जीन है। बाद में खोज से पता चला कि इसको फैक्टर, उन्होंने कहा आज जो खोज होने के बाद पता वही जीन है। उन्होंने मेंडल ने कहा था कि वन कैरेक्टर कैरीड बाई वन पेयर्स ऑफ फैक्टर, दैट इज द वन कैरेक्टर इज कैरीड बाई वन पेयर्स ऑफ फैक्टर और फैक्टर, वन फैक्टर, दैट फैक्टर इज जीन। तो जीन कहाँ है, फैक्टर कहाँ है, जीन जो है क्रोमोसोम पर है, और क्रोमोसोम पर कहाँ है, लोकस पर। सपोज करिए क्रोमोसोम, देखिए ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम हमेशा पेयर में होता है, और एक पेयर का क्रोमोसोम दूसरे पेयर के क्रोमोसोम से सेम होता है।
क्रोमोसोम पर यहाँ जो होते हैं जगह होती है, इसको लोकस कहते हैं, लोकस सिंगुलर नंबर, और लोकाई होता है लोकाई, लोकाई प्लूरल नंबर होता है। तो सिंगुलर नंबर लोकस, प्लूरल नंबर लोकाई। अब देखिए यह जगह जहाँ जीन मिलेगा यहाँ ये लोकस है, और ये क्रोमोसोम होमोलागस, होमोलागस, ये कन्फ्यूजन ना हो आपको, होमोलागस क्रोमोसोम है। तो क्रोमोसोम प्रेजेंट इन पेयर्स, आपके बॉडी में 23 पेयर्स हैं, और पी में कितने थे? 7 पेयर, पी का यानी 7 पेयर, 7 पेयर्स होते थे, फर्स्ट पेयर, सेकेंड पेयर, थर्ड, 7 पेयर। अब यह क्रोमोसोम पर जगह जगह स्थान है, इसको लोकस कहते हैं। सपोज करिए कि यहाँ स्थान है लेंथ का, लेंथ ऑफ द प्लांट, लेंथ। तो लेंथ ऑफ द प्लांट के लिए 1 पेयर्स ऑफ फैक्टर जिम्मेदार है, या तो कैपिटल टी या उसको इस्तेमाल किया स्मॉल टी। अब ये देखिए यहाँ कैपिटल टी हो सकता है, यहाँ स्मॉल टी हो सकता है, या दोनों जगह कैपिटल टी हो सकते हैं, या एक जगह कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों जगह हो सकते हैं, दोनों जगह कैपिटल टी हो सकते हैं, या एक जगह कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकता है, लेकिन होंगे यहीं। ऑल द जीन्स हैव इट्स पोजीशन ऑन द क्रोमोसोम, सभी जीन की क्रोमोसोम पर इसकी अपनी पोजीशन होती है, और जहाँ होती है उसी को लोकस कहा जाता है। और होमोलागस को, इसमें से एक जो है मदर से आया होता है, एक फादर से आया होता है, इसी को उन्होंने यूज किया था फैक्टर। अब देखिए तीसरा टर्म ही यूज किया था एलिल, एलिल शब्द यूज किया था, एलिल, ध्यान से देखिए आप, एलिल्स, एलिल्स, एलिल्स क्या देखा जाए, एलिल्स के लिए बताएं आपको, एलिल्स जो होता है 2 अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द सेम कैरेक्टर, एक ही कैरेक्टर के 2 अल्टरनेट फॉर्म, कैरेक्टर एक हैं और उसके फॉर्म 2 हैं, उसी को एलिल या एलिलोमार्फ भी कहते हैं। बुक में लिखा होगा एलिलोमार्फ, तो कंफ्यूज मत होइएगा, एलिल और एलिलोमार्फ सेम है। एक ही कैरेक्टर के 2 ऑप्शन कि एक ही 2 अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द सेम कैरेक्टर। और क्या देखें यहीं बुक में लिखा हुआ कैसे, एक कैरेक्टर, 1 कैरेक्टर कैरीड बाई 1 जीन, तब एक कैरेक्टर को एक जीन ले जा रहा है, इसे दूसरे रूप में कह सकते हो इसी बात को, 1 कैरेक्टर 2 अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द सेम जीन, 2 अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द सेम जीन, 2 अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द सेम जीन, फॉर्म ऑफ द सेम जीन, एक ही जीन के 2 अल्टरनेटिव फॉर्म को हम क्या कहते हैं, एलिल्स कहते हैं या एलिलोमार्फ कहते हैं। जैसे लेंथ ऑफ द प्लांट, लेंथ 1 कैरेक्टर, लेंथ ऑफ द प्लांट एक कैरेक्टर है, 1 कैरेक्टर, लेंथ ऑफ द प्लांट, 2 अल्टरनेटिव फॉर्म क्या, टी एंड स्मॉल टी। यह देखिए टी और टी, ये दोनों हैं क्या, एलिल्स हैं। अगर दोनों एलिल सेम हों, टी कैपिटल टी स्मॉल टी, दोनों एलिल सेम हों या दोनों में स्मॉल टी हों, तो इनको कहोगे होमोजाइगस, होमोजाइगस। देखिए यह होमोजाइगस टाल के लिए है और यह होमोजाइगस ड्वार्फ के लिए है। अगर ऐसा ना हो तो क्या हो, ऐसे हो, एक कैपिटल टी स्मॉल, तो कहेंगे हेटेरोजाइगस, हेटेरोजाइगस। अगर दोनों जो है एलिल्स, ये दोनों एलिल हैं, 2 अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द सेम जीन, या लिख सकते हो जीन का सेम कैरेक्टर इज कॉल्ड एलिल। अब दोनों एलिल सेम, यह देखो, तो होमोजाइगस और डिफरेंट देन हेटेरोजाइगस। तो मैंने होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, एलिल्स लिखा था। फिर देखिए जीनोटाइप, फिनोटाइप, देखिए ध्यान से क्या है जीनोटाइप। अगला टर्म देखें हम, जीनोटाइप, फिनोटाइप। जीनोटाइप, जीनोटाइप क्या देखा जाए और फिनोटाइप क्या, पहले फिनोटाइप देखा जाए। फिनोटाइप, फिनोटाइप जो आपको देखने से बाहर से दिखाई दे वो फिनोटाइप है। द कैरेक्टर विच यू सी आउटसाइड इन एनी ऑर्गेनिज्म, दैट इज फिनोटाइप। आपने देखा कि प्लांट टाल है, टाल, तो आप लिखोगे इसका फिनोटाइप टाल है। अब देखिए टाल के लिए 2 चीज़ कंडीशन है,
एक ये अभिताल है जिसमें दोनों एलील सेम है, और एक ये अभिताल है। देखिए अभिताल है, अभिताल है, ताल ये भी है ताल, और ये भी क्या है टॉल है। तो आप फिनोटाइप में इसको भी ताल कहोगे, इसको भी ताल कहोगे, लेकिन जब आप जीनोटाइप दिखाओगे, जीनोटाइप अब देखिए जीनोटाइप, या फिनोटाइप में दोनों ताल हैं, और जीनोटाइप में क्या दिखाओगे, इसको कहोगे कि आप टी प्योर ताल। जब इसका जीन देखने लगोगे, द ऑर्गेनिज्म हैव इफ यू सी जेनेटिक कंस्ट्रक्शन, तब आप क्या बोलोगे, यह ताल तो है, प्योर ताल है, और इसको क्या कहोगे आप, हाइब्रिड ताल, हाइब्रिड ताल। तो इस यह देखिए क्या हो गया, इसका जीनोटाइप हो गया। आई फिनोटाइप में बोथ आर ताल। तो दो चीज़ आएंगी बार बार, जीनोटाइप, फिनोटाइप, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस बता दिया। दूसरी चीज़ आएगी कि जनरेशन, F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, F1 P1 जनरेशन। देखिए P1 जनरेशन, आप देखिए प्लांट लिया आपने, ताल प्लांट लिया, ताल प्लांट क्रॉस करा ड्वार्फ प्लांट से, ड्वार्फ प्लांट से। ताल को आप क्या लिखते हो, कैपिटल टी, क्रॉस विथ स्मॉल टी, ये ड्वार्फ के लिए सिंबल है। अब देखिए इसको जो ताल और ड्वार्फ है इसको कहते हैं P1 जनरेशन, P1 जनरेशन। P1 का मतलब होता है पेरेंटल जनरेशन, यही पेरेंट लिए हो आप, फीमेल और मेल। ताल प्लांट कोई इसको मान लो ड्वार्फ प्लांट, फीमेल इसको ले लिए, मेल किया इसको, फीमेल ले इसको, कोई ले सकते हो आप। तो आप देखिए जब इसको क्रॉस कराओगे तो इसमें देखोगे आप जो प्रोजनी आएगी, सभी प्लांट जय इसके सीड आएंगे क्रॉस कराने से, सभी ताल क्या आएंगे, देखोगे आप फिनोटाइप क्या, टॉल। फिनोटाइप में क्या लिखोगे आप, टॉल। तो अब देखिए ताल आ गई, तो अब जो ताल आ गए तो ये हो गई F1 जनरेशन, F1 जनरेशन। तो इसको आप बोलोगे F1 जनरेशन। अब ये पहली, ये तो पेरेंटल प्लांट P1 जनरेशन है, F1 जनरेशन फर्स्ट फाइलियल जनरेशन। F1 का मतलब होता है F1 फर्स्ट फाइलियल जनरेशन। कन्फ्यूजन ना हो कहीं, सब टर्म में कन्फ्यूजन, इसको कहते हैं फर्स्ट फाइलियल जनरेशन। अब देखिए ये F1 जनरेशन आ गया। अब देखिए इसको फिर आप सेल्फ क्रॉस करा दो, सेल्फ पॉलिनेशन करा दो, सेल्फ पॉलिनेशन। तो इसमें देखिए आप इस तरह से मिलेगा, तो हम क्रॉस दिखाएंगे भी बाद में आपको। ये देखिए आएगा कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, और स्मॉल टी, स्मॉल टी। अब इसमें जो प्लांट आए फिनोटाइप 3 ताल हुए, ये भी ताल, ये भी ताल, ये भी ताल, और जीनो फिनोटाइप ये ड्वार्फ हुआ। तो आप ये अभी इसको जब देखोगे यह जनरेशन कहोगे, इसको F2 जनरेशन, F2 जनरेशन। तो यही बार बार आपको लिखा जाएगा F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, तो आपको दिखाएंगे F2 जनरेशन। और क्रॉस क्या है, एक क्रॉस का चिन्ह देखो बार बार बनाया हूँ, क्रॉस का चिन्ह। क्रॉस मतलब एक का पॉलन ग्रेन, जैसे टाल का पॉलन ग्रेन ड्वार्फ प्लांट पर हमने डाल दिया, या ड्वार्फ का पॉलन ग्रेन टाल पर डाल करके देखा कि इसकी जनरेशन में कैसे प्लांट आ रहे हैं। तो F1 जनरेशन में सभी टाल आ गई, और F2 जनरेशन में टाल भी आया, ड्वार्फ भी आया। तो बार बार हम एक टर्म यूज करेंगे, ट्रेट है, फैक्टर है, एलील्स है, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगोट, जीनोटाइप, फिनोटाइप, F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, क्रॉसिंग। It is the some terminology that we use step by step. Factor, alleles, these are the terms that are used in the all every genetics. Genetics is a special branch of biology in which we study about hereditary character. Hereditary character are those characters that transfer generation by generation from parent to their offspring. And father of genetics Gregor John Mendel. तो हम पढ़ेंगे अब ग्रेगर जॉन मेंडल किस प्रकार से एक्सपेरिमेंट किए और जो रिजल्ट आया किस तरह से, उसको उन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस लिखाया, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो पढ़ेंगे लॉ ऑफ मेंडल्स लॉ। तो कल हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे, आप सब टर्म याद कर जाइएगा, और नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे मेंडल्स लॉ। अब आपको बार बार रिपीट करते रहते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगती तो लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए। मैं आपके हर कमेंट को, हर क्वेश्चन को, जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आप पूछते रहिए, मैं सॉल्व करके देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।